بلیٹن میں خوش آمدید، اور اب آپ کو بتائیں کہ شادی سے قبل جوڑے کے ایڈز اور تھیلیسیمیا کی ٹیسٹ لازمی قرار۔ پی اے سی کے نکاح نامے میں خانہ شامل کرنے کی سفارش۔ نکاح ہاں کو ایڈز اور تھیلیسیمیا رپورٹ جانچ کرنے کے لیے پابند بنانے کی ہدایت۔ چیئرمین نثار کھوڑو کی زیر صدارت پی اے ایس کا اجلاس ہوا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا 1600 پاپولیشن سینٹر قائم کرنے کا حکم۔ آبادی کنٹرول کرنے کے لیے ہر یو سی میں خصوصی سینٹر بنایا جائے گا۔ مزید یہ رپورٹ دیکھیں۔ خوراک کی کمی، سماجی اور معاشی مسائل۔ سندھ میں بے ہنگم آبادی بچوں کے ساتھ ساتھ کئی مسائل کو جنم دینے لگی۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نثار کھوڑو کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 2018 سے 2020 تک پاپولیشن جائزہ لیا گیا۔ سیکریٹری پاپولیشن حفیظ اللہ عباسی نے بتایا کہ سندھ میں روزانہ 11,000 بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ سندھ میں فیملی پلاننگ کے لیے 18,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہی ہیں۔ سندھ کے 40% علاقوں میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی کمی ہے۔ کمیٹی نے آبادی کنٹرول کے لیے سندھ بھر میں یو سی سطح پر سینٹرز قائم کرنے اور 1600 یو سیز میں پاپولیشن سینٹرز قائم کرنے کا محکمہ پاپولیشن ویلفیئر کو حکم دیا۔ اجلاس میں نکاح نامہ میں شادی والے جوڑے کو HIV، ایڈز اور تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ لازمی قرار۔ نکاح نامہ میں خانہ شامل کرنے کی سندھ حکومت کو سفارش کر دی۔ رجسٹرڈ نکاح خواہوں کو نکاح سے قبل جوڑے کی HIV، ایڈز اور تھیلیسیمیا ٹیسٹ رپورٹ لازمی جمع کرانے کے لیے پابند بنانے کی متعلقہ محکموں کو ہدایت کر دی۔ دوسری جانب شہریوں نے حکومتی فیصلے کو سراہا اور کہا کہ اس طرح آبادی کم ہونے کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بچاؤ بھی ممکن ہوگا۔ تاہم بعض شہریوں نے نکاح نامہ میں ٹیسٹ لازمی قرار دینا ظلم قرار دیا۔ دین اسلام میں دیکھا جائے تو یہ بیماری کوئی لاحق نہیں کرتی جب تک اللہ پاک نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑھاؤ۔ یہ تو گورنمنٹ نے اچھا کام نہیں کر رہی ہے، ہم اس کی مخالفت کریں گے بالکل۔ اجلاس میں کمیٹی کے رکن طہا احمد اور محکمہ پاپولیشن ویلفیئر کے سیکریٹری حفیظ اللہ عباسی سمیت سندھ بھر کے ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر افسران شریک ہوئے۔ 6 لاکھ دیں، ٹرین میں VIP سہولتیں لیں، لگژری سیلون سب عام شہری بھی بک کروا سکیں گے۔ وزیر اعظم، وزیر ریلوے اور چیئرمین ریلوے کو حاصل مراد کے مسئلے۔ کراچی سے لاہور لگژری سیلونز کا ٹکٹ 6 لاکھ روپے میں ملے گا، جبکہ لاہور سے اسلام آباد کا سفر 1.5 لاکھ روپے میں کیا جا سکے گا۔ ٹرین میں 5 لگژری سیلونز کوئی بھی مسافر بک کروا سکے گا۔ شہر کے سب سے بڑے اسپتال میں درجنوں AC خراب، NICH میں ایئر کنڈیشنر بند ہونے سے مریض خوار۔ شدید گرمی میں ڈاکٹر اور دیگر عملہ بھی مشکلات کا شکار۔ جنرل سیکریٹری YDA کا 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم۔ کہا شدید گرمی میں مریضوں کا علاج نہیں کر سکتے، AC ٹھیک نہ ہوئے تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ تاریخی عمارت خارج ہاؤس کو کیوں مسمار کیا گیا؟ تحقیقات مکمل۔ جائیداد کا مالک سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور محکمہ نوادرات کے افسران ذمہ دار قرار۔ ڈائریکٹر اشفاق کھوکر، ڈپٹی ڈائریکٹر آغا کاشف معطل، محکمہ نوادرات کے ڈپٹی ڈائریکٹر پر منقیبی معطل۔ جبکہ DG SPCA اسحاق کھوڑو بھی ذمہ دار قرار۔ کل تک وضاحت طلب۔ چیف سیکریٹری کی 3 افسران اور جائیداد کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت۔ تمام تاریخی عمارتوں کا سروے اور نقشہ سازی کا بھی حکم۔ جامعہ کراچی میں پانی کی لائن متاثر ہونے سے مختلف علاقوں کو پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ کورنگی 48B میں بھی پانی کی عدم فراہمی کے باعث مکین بوند بوند کو ترس گئے۔ رپورٹ کریں گی اقصیٰ شیخ۔ کراچی میں پانی کا قحط، شہری بوند بوند کو ترسنے لگے۔ جامعہ کراچی میں پانی کی لائن متاثر ہونے سے مختلف علاقوں میں قلت آب کی صورتحال ہے۔ کرنگی 48B کے مقیم بھی کئی روز سے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ سرکاری سپلائی بند ہونے کے بعد مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں۔ گزارا کر رہے ہیں، پیسوں سے ڈلائیں گے تو ہم لوگ تو تمہیں پتہ ہے نا 4 دن بھوکے رہتے ہیں، ایک ٹائم پکاتے، پھر کیا کریں گے انسان؟ کبھی کسی سے 2 بالٹی مانگ رہے تو اس طرح گزارا ہو رہا۔ آج تو بالکل بھی نہیں ہے پانی استعمال کے لیے بھی ذرا سا بھی۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر پانی کی فراہمی بحال کی جائے تاکہ روزمرہ کی زندگی معمول پر آ سکے۔ کیمرامین کاشف کے ساتھ اقصیٰ شیخ، سٹی 21۔ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے خلاف احتجاج۔ دھرنے میں شامل افراد کے خلاف مقدمات پر وکلاء کا اظہار تشویش۔ کراچی بار نے حکومت سے تمام مقدمات واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات جواد آصف کی رپورٹ میں جانیے۔
दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला। सिटी कोर्ट में कराची बार एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धरने में शामिल अफराद के खिलाफ मुकदमात का मुद्दा उठाया गया। जनरल सेक्रेटरी कराची बार रहमान कुराई बोले, धरने के बाद कई अफराद को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए मुकदमात बनाए। इस हवाले से लॉयर एक्शन कमेटी को मुतहरिक करेंगे। बहुत सी ऐसी शिकायत अब मौसूल हुई हैं कि जिसमें मुतअद्दिद हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के या इंडिविजुअल्स पे एफआईआर या कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिनको वो बार बार अप्रोच कर रहे हैं, जिस पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम अपने तमाम दोस्तों को जो कि ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी के हैं, हम उनको भी ऑन बोर्ड इस पे लेंगे और वो वैसे भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कंडेम कर चुके हैं। कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइश ने कहा कि मुल्क पहले ही हालात जंग में है, इसलिए ऐसी हरकत से गुरेज किया जाए। यही शहरी फौज और रियासत के साथ खड़े होंगे। आपको पता है कि इस टाइम मुल्क किस वक्त से गुजर रहा है, किस नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, जिसमें हम एक अपने दुश्मन को फेस कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में आप कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे आप अवाम की नफ़रत का बाइस बने। और वो अवाम जिसने अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ा होना है, जिसने रियासत के साथ शाना बशाना खड़ा होना है। कराची बार ने मुकदमात की जद में आने वाले अफराद का केस मुफ्त लड़ने का ऐलान भी किया। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। कारोबार की दुनिया से खबर शामिल करें और अब आपको बताएं, स्टेट बैंक की जानिब से बुनियादी शरह सूद में कमी पर रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस का तबसरा। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद में कमी मार्केट को तवक्कुआत से ज़्यादा कमी की। अफरात सर में कमी, बैरूनी खातों में बेहतरी के बाद स्टेट बैंक के पास बुनियादी शरह में मज़ीद कमी की गुंजाइश है। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद में कमी मार्केट तवक्कुआत से ज्यादा की है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% कमी से 11% मुकर्रर कर दी है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के मुताबिक अफरात ज़र में कमी, बैरूनी खातों में बेहतरी के बाद स्टेट बैंक के पास बुनियादी शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है और साल 2025 के इख्तिताम तक शरह सूद में 1% मजीद कमी हो सकती है। अमरीकी नई टैरिफ पॉलिसी की वजह से गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पर स्टेट बैंक ने मोहतात रवैया इख्तियार किया। साथ ही कहा कि मुकामी सतह पर पैदावारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। ये भी कहा कि पाकिस्तान के बरामदी ऑर्डर्स में कमी देखी जा रही है। मुस्तकबिल करीब में ईंधन के महंगा होने की वजह से अफरात ज़र में इजाफा हो सकता है। जून के इख्तिताम तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुँच सकते हैं। एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान को सालाना बुनियादों पर कर्जों की अदायगी के लिए $27 अरब की जरूरत है। पाकिस्तान ने माली साल 2025 के लिए $16 अरब की अदायगियाँ कर दी हैं, जबकि 1 अरब 30 करोड़ से 1 अरब 50 करोड़ डॉलर की अदायगियाँ बाकी हैं। S&P ग्लोबल मार्केट एजेंसी का कहना है कि दोस्त ममालिक के रोल ओवर के बाद भी आइंदा माली साल में बैरूनी अदायगियों के लिए $9 अरब इजाफी दरकार होंगे। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत की जानिब से 15 जून से सूबे भर में प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुशावरत का मुतालबा कर दिया। कहा कि प्लास्टिक बैग का मुतबादिल लाया जाए। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखिए। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी, कराची चैम्बर का मुशावरत का मुतालबा। कराची चैम्बर के सीनियर नायब सदर ज़ियाउल आरफीन ने प्लास्टिक बैग्स की बंदिश का फैसला दुरुस्त इकदाम करार दे दिया। कहा कि इस पर मौसर अमल दरामद भी इतना ही ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का मसला है। पाकिस्तान में भी माहौल दोस्त इक़दामात की ज़रूरत है। हुकूमत मरहलावार और मुशावरती अमल के ज़रिए पॉलिसियाँ नाफिज करे ताकि पायदार नताइज हासिल किए जा सकें। और क्लाइमेट चेंज का मामला पूरी दुनिया के अंदर है और आप ये देखें कि इनिशिएटिव तो किसी को लेना होगा। मैं बस एक बात ज़रूरी होती है कि अगर कोई भी फ़ैसला करें ना, उसमें स्टेक होल्डर्स को, बिज़नेस कम्युनिटीज़ को आप लेके कुछ टाइम सेट करें कि जी ये चीज़ ख़त्म करनी है, अगर गलत है तो उसको ख़त्म करनी है, तो उसको कैसे की जाए। कराची चैम्बर के नायब सदर फैसल खलील का कहना है कि हुकूमत अगर किसी चीज़ पर पाबंदी लगाना चाहती है तो पहले इसका मुतबादिल पेश करे। बगैर मुतबादिल के ऐसे इक़दामात से कारोबारी तबके को नुकसान पहुँच सकता है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी चीज़ पर पाबंदी लानी है तो पहले उसका सब्स्टिट्यूट देना होगा। सिंध गवर्नमेंट बताए कि ठीक है जी, प्लास्टिक बैग अगर नहीं करने तो क्या इसका सब्स्टिट्यूट है। तो मेरा ये सिंध गवर्नमेंट को मशवरा है कि आप स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग कॉल करें और इस पर डिस्कशन करें और जो भी आपने करना है वो आप डिस्कशन के बाद फैसला करें। कराची चैम्बर के रहनुमाओं का कहना है कि पिछले कई बरसों से इस किस्म की पाबंदियों का जिक्र किया जा रहा है,
लेकिन अमली इक़दामात और मुशावरत के बगैर फ़ैसले देर पा साबित नहीं होते। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। FPCCI और एप्टमा का टैक्स ऑर्डिनेंस 2025 पर शदीद एहतजाज, हालिया टैक्स तरमीम को सालमाना करार दे दिया। टैक्स तरमीम के फौरी खात्मे और स्टेक होल्डर्स पर मुशावरत का मुतालबा कर दिया। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में जानिए। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का शरह सूद और टैक्स ऑर्डिनेंस पर रद्द अमल। ऑप्टिमा का स्टेट बैंक की जानिब से 100 बेस पॉइंट्स पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम। शरह सूद 12% से कम होकर 11% होना सनत की बहाली के लिए मस्बत कदम करार दे दिया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने टैक्स ऑर्डिनेंस 2025 पर शदीद एहतजाज किया है। कहा कि हालिया टैक्स तरमीम जालिमाना है। चेयरमैन ऑप्टिमा कामरान अरशद कहते हैं कि ऑर्डिनेंस अदालती रिलीफ को गैर मौसर बनाकर FBR को लामहदूद इख्तियारात दे रहा है। ये जो सदारती ऑर्डिनेंस पास हुआ है FBR को अनलिमिटेड पावर्स देने का और बैंक अकाउंट्स अटैच करने का एंड यूनिलैटरली या वन साइडेड केसेस डिसाइड करने का, वेदर वो ट्राइब्यूनल में है, वेदर वो हाई कोर्ट में है, वेदर सुप्रीम कोर्ट में है, ये बिल्कुल गलत है और हम इस चीज़ पे सख्त अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। FPCCI ने भी टैक्स तरामीम के ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। FPCCI के नायब सदर अमान पराचा ने कहा है कि वजीर खजाना फेसलेस सिस्टम की बातें कर रहे हैं। दूसरी जानिब FBR के अफसरान को कारोबारी इदारों पर तैनात करने का ऑर्डिनेंस ले आए हैं। फैसले को मुस्तरद करते हैं। जो टैक्स नहीं दे रहा उसको टैक्स नेट में लाया जाए। वजीर खजाना की बात माने, इस ऑर्डिनेंस को माने कि वो कह रहे हैं कि हम आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे और हम भी चाहते हैं और पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि आप कहीं भी चले जाएं वहाँ पे कारोबारी तबकात के लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं। हम कैटेगोरिकली इसको मुस्तरद करते हैं। इस तरह का कोई लॉ हम नहीं मानेंगे जब तक हमारे से दोबारा मुशावरत न की जाए। और एक और जो इन्होंने बैंक से पेमेंट निकालने का बोला है कि आप बगैर नोटिस के लिए पेमेंट आप निकाल लेंगे, तो ये इससे भी हम बहुत ज़्यादा एक मतलब हमारे इस्तराब है पूरे बिजनेस कम्युनिटी में। ये किस तरह के कवानीन है। मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी ने कहा है कि टैक्स तरामीम कानून की हुक्मरानी को कमजोर करती हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला शिकनी की जा रही है। ऑप्टिमा और FPCCI ने टैक्स तरामीम के फौरी खात्मे और स्टेक होल्डर से मुशावरत का मुतालबा किया है। अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर की ताजर बरादरी ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में की गई हालिया तरामीम को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत से मुतालबा किया है कि तरामीम को फौरी तौर पर वापस लाया जाए। ताजरों का कहना था कि अगर हुकूमत ने 15 दिन के अंदर तरामीम वापस ना ली तो एहतजाजी तहरीक का आगाज किया जाएगा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। टैक्स ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का अंदिया। ताजरों की जानिब से हुकूमत को 15 रोज का अल्टीमेटम। और सिटी ताजर इत्तेहाद के सरपरस्ते आला शर्जील गोपलानी ने कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में की गई तरमीम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मईशत बचाओ तहरीक का बाकायदा आगाज हो चुका है। मार्केटों में FBR नुमाइंदों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। इन्होंने हुकूमत को 15 दिन देते हुए खबरदार किया कि अगर तरमीम वापस ना ली गई तो ताजरों का एहतजाज फैसला कुन मरहले में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान मईशत बचाओ तहरीक रखा जा रहा है और ये तहरीक का आगाज हम अब से कर रहे हैं। हम इस ऑर्डिनेंस की तमाम सिटों को मुस्तरद करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को लूप में लेके इस पर मशावरत की जाए। हम हुकूमत वक्त को 15 दिन का वक्त दे रहे हैं इस मामले को हल करने में। और जो हमारे एहतजाज की तहरीक है उसमें पहले मरहलों में शहरों में एहतजाज होगा। तमाम मार्केटों में FBR के नुमाइंदों का दाखिला ममनू करार दिया जाता है। फर्नीचर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन राना वहीद का कहना था कि मरूजा तरमीम से FBR के करप्ट अनासिर को मजीद खुलकर करप्शन करने का मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ इस कानून के ज़रिए और भी ज़्यादा करप्शन का बाजार गर्म होगा और जिस तरह POS के अंदर मंथलियाँ बन जाती हैं तो उन्होंने जो इसमें मज़ीद जो है इनकी मंथलियाँ बनेंगी और करप्शन का बाजार गर्म होगा और बैंकों से लोग अपना पैसा भी निकालना शुरू कर देंगे और पूरी ट्रेड को मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो। और ऐसे हालात में जहाँ पर एक जंग का माहौल इंडिया ने बनाया हुआ है, इस वक्त यूनिटी की हमें ज़रूरत थी, ना कि इस तरह की कोई SRO ला के ताजरों में इंतशार पैदा हो जाए और लोग जो है यूनिटी के बजाय आपस में बिखर जाएं। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम मईशत दुश्मनी के मुतारिफ है। हम अब भी ऑफर करते हैं हुकूमत को कि वो बैठे गौर करें। ये
कुरान किसी इस सहीफे की आयत नहीं है कि इसमें तब्दीली नहीं आ सकती। ये बात तय है, इसे जितना भी देखा, जितना भी समझा, ये ज्यादती है, नाकाबिल अमल है। और इस डर और खौफ को ख़त्म करके हमें आला लेवल पे बात करनी चाहिए। पहले मरहले में हमें किसी भी एहतजाज की तरफ नहीं जाना चाहिए। पहले मरहले में हमें पहले बातचीत से मसले मसाइल हल करने चाहिए। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात हर फोरम पर उठाएंगे। अगर हुकूमत की जाने से संजीदगी ना दिखाई तो मुल्क गिर एहतजाज और हड़ताल की कॉल दी जा सकती है। कैमरामैन शाजिब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच से इंसदाद दहशत गर्दी अदालत और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में इश्तियाल अंगेजी और डंपर जलाने का केस। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट अफाक अहमद समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। मुल्जिमान को मुकदमे की नकल फराहमी न की जा सकी। अदालत ने मुकदमे की समाअत 13 मई तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में सानिया 12 मई केस की समाअत। तफ्तीशी हुक्काम गवाहों को पेश करने में नाकाम हो गए। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को पेश करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में सानिया 9 मई केस की समाअत। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख, राजा अजहर, फ़हीम खान, खुर्रम शेर जमान, आलमगीर खान, शाहनवाज जदून समेत 32 मुल्जिमान पेश। मुल्जिमान के सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने इस्तग़ाज़ा के गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। बार बार की तलबी के बावजूद पेश न होने पर FIA के तफ्तीशी अफसरान के वारंट जारी। आईनी बेंच ने FIA के DG एंटी करप्शन सर्कल, डायरेक्टर स्टेट बैंक सर्कल को शो कास्ट नोटिस जारी कर दिए। डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल बैंकिंग सर्कल को भी 3 जून के लिए शो कास्ट नोटिस जारी। अदालत ने मुख्तलिफ केसेस में FIA के तफ्तीशी अफसरान को ज़ाती तौर पेश होने की हिदायत की। निफ्स सदी गुजर जाने के बावजूद प्लॉट का मामला हल नहीं हो सका। सिंध हाई कोर्ट ने पहला फैसला कलअदम करार देते हुए गवर्नर सिंध को दोबारा फैसले की हिदायत कर दी। गवर्नर सिंध को 12 साल बाद अपील दायर करने के कानूनी असरात का भी जायजा लेने और दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ भी सुनने की हिदायत कर दी। जस्टिस इकबाल कड़होड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त निपटाते हुए फैसले के लिए दोबारा गवर्नर को भेज दी। चीनी कंपनी से धोखाधड़ी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने 3 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला सुना दिया। अदालत ने 3 मुल्जिमान जावेद महमूद, सैयद ज़ीशान बिलग्रामी और मोहम्मद खालिद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 3-3 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। दोस्त के साथ मिलकर शौहर को कत्ल करने का केस। गरबी की अदालत ने केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुल्जिमा फौजिया और मुल्जिम तलहा को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिमान को 5 लाख रुपए वुरसा को अदा करने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी कॉल सेंटर केस। अदालत ने मुल्जिम अरमुगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आतिफ के खिलाफ 53 करोड़ से जायद का बैंक फ्रॉड केस। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुद्दई मुकदमा और FIA प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए।